नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द संकेत लाइव में और मैं हूं तमन्ना। और आज हम बात करेंगे उस शख्स की जो कभी इंडिया का किंग कहलाता था, लेकिन आज भगौड़े आर्थिक अपराधी के नाम से जाना जाता है, जिसने कभी भारत के बिजनेस जगत को हिलाया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विजय माल्या की। वो विजय माल्या जिसने किंगफिशर की चमक धमक से लेकर फार्मूला 1 की रेस और आईपीएल के मैदान तक अपनी बादशाहत दिखाई। 9,000 करोड़ का कर्ज, बैंकों की बर्बादी और हजारों कर्मचारियों की अधूरी सैलरी। आज हम जानेंगे कैसे एक बिजनेस टाइकून बना देश के लिए बोझ। हाल ही में विजय माल्या ने एक पॉडकास्ट इंटरव्यू दिया है, जो लगभग 9 साल बाद उनका पहला इंटरव्यू बताया जा रहा है। इस इंटरव्यू में उन्होंने कई बातें कही है। माल्या ने इस बात पर जोर दिया कि उन्हें चोर कहना गलत है, क्योंकि उन्होंने कोई चोरी नहीं की है। उनका कहना है कि अगर कोई उन्हें भगौड़ा कहना चाहता है तो कह सकता है, लेकिन चोर कहना उन पर लगे गलत आरोप है। राज शमानी ने हाल ही में अपने YouTube चैनल पर विजय माल्या के साथ 4 घंटे 18 मिनट का पॉडकास्ट जारी किया है। यह एक ऐसा साक्षात्कार है जो भारतीय समाचार मीडिया आज तक हासिल नहीं कर पाया। माल्या ने दावा किया कि मार्च 2016 में भारत छोड़ने से पहले उन्होंने तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली को बताया था कि वह लंदन जा रहे हैं और जिनेवा में उनकी एक मीटिंग है, वह वापस आ जाएंगे। I told the finance minister Arun Jaitley before leaving for the airport. And then I flew from Delhi to London. I was on my way to Geneva for a FIA World Council meeting, which was fixed months ago. I told the finance minister because I went from Parliament to Delhi airport. When this news hit the media, once again, it created a storm. Yeah. People went running to Mr. Jaitley. He denied meeting me. A Congress MP saw us and then said to the media, no, I saw them together. Mr. Jaitley had to retract his statement and say, yes, I met him, but only while I was walking. It was a fleeting meeting. I never said I went to Mr. Jaitley's office, sat in front of him, had tea with him. All I said is I told the finance minister while leaving, I'm going to London. I have to go to Geneva for a meeting. I'll be back. Please tell the banks to sit across the table and settle with me. How long does this take? This one sentence? A minute or two. चलते चलते बात हो सकती है ना? हाँ. मैं थोड़ी ना कहा कि मैं कुर्सी और मेज के सामने बैठ के डिस्कशन कर रहा था. But you see the way he denied it. Then when the Congress MP pointed out his mistake that he saw us, he quickly changed. I've seen the statement of Vijay Maल्या where he claims to have met me with an offer of settlement. Nothing could be further from truth. I have never given him an appointment, never at my office, never at my residence, nor have I ever offered to meet him. I do remember on one occasion, he misused his privilege as a member of Rajya Sabha. And while I was walking out of the Rajya Sabha to my room, he paced up towards me in the Parliament building and suggested that he was going to make some offer of settlement. I did not even bother to get any detail from him. I curtly told him that he must go and make it to the bankers because I was fully aware that he had been bluffing on several occasions in the past and had no intention of paying back the bankers' money. Besides this one sentence exchanged, where he literally barged on to me while I was walking and tried to make some offer or a suggestion which I refused to entertain. There is no question of my having ever met him, spoken to him. I even did not receive any paper from him at that time. And therefore, to convey an impression that he met me with an offer of settlement, well, if this is what he is referring to, then I'm sure this is factually not correct. He must come out with a complete. उन्होंने जेटली से अनुरोध किया था कि वह बैंकों को समझा दें कि वह उनके साथ बैठकर सेटलमेंट करें। माल्या ने कहा था कि वह भारत लौटना चाहते हैं, लेकिन उनका पासपोर्ट रद्द कर दिया गया है। माल्या का दावा है कि उन्हें सीबीआई के लुकआउट नोटिस की जानकारी नहीं थी।
लेकिन सवाल ये है, अगर वो बेगुनाह थे तो पासपोर्ट रद्द होने के बाद उन्होंने वापसी की अपील क्यों नहीं की? 4 घंटे के पॉडकास्ट में विजय माल्या ने यह भी कहा कि वह भारत लौटने के लिए तैयार है अगर मुझे निष्पक्ष सुनवाई और भारत में सम्मानजनक अस्तित्व का आश्वासन मिलता है। क्या ये सच्चाई है या फिर एक और बहाना? दोस्तों, विजय माल्या कोई साधारण इंसान नहीं थे। 27 साल की उम्र में उन्होंने अपने पिता का यूनाइटेड ब्रूवरीज ग्रुप संभाला। किंगफिशर बियर को भारत में 52% मार्केट शेयर तक ले गए। लेकिन असली खेल शुरू हुआ 2005 में, जब उन्होंने किंगफिशर एयरलाइंस लॉन्च की। प्रीमियम सर्विस, खूबसूरत एयर होस्टेज और शानदार मार्केटिंग, किंगफिशर का नाम हर जुबान पर था। उनकी मार्केटिंग मास्टर स्ट्रोक की अगर हम बात करें तो किंगफिशर कैलेंडर, आरसीबी जैसी आईपीएल टीम और फोर्स इंडिया फार्मूला 1 रेसिंग ने उनके ब्रांड को ग्लैमरस बनाया। माल्या ने हाल ही में दिए पॉडकास्ट में कहा, मैंने किंगफिशर को ग्लोबल स्टेज पर लाने की कोशिश की, लेकिन सवाल ये है, क्या ये ग्लैमर सिर्फ दिखावा था? 2008 की ग्लोबल मंदी ने किंगफिशर को घुटनों पर ला दिया। तेल की कीमतें $140 प्रति बैरल तक पहुंची और रुपए की वैल्यू गिरी। माल्या ने एयर डेक्कन का अधिग्रहण किया, लेकिन ये फैसला उल्टा पड़ा। 2005 में माल्या पर $13 मिलियन का कर्ज था, जो 2010 तक $4 बिलियन हो गया। एसबीआई, पीएनबी जैसे बैंकों ने 9,000 करोड़ का लोन दिया, लेकिन माल्या इसे चुका नहीं पाए। माल्या ने फार्मूला 1 रेसिंग और आईपीएल में पैसा झोंका, जबकि एयरलाइंस घाटे में थी। पॉडकास्ट में वो कहते हैं कि 2008 की मंदी ने मुझे डुबो दिया, लेकिन क्या सिर्फ मंदी जिम्मेदार थी या माल्या की ओवर एम्बिशंस? 2012 में किंगफिशर बंद हुई और 9,000 कर्मचारियों की 260 करोड़ की सैलरी अटक गई। माल्या का दावा है, मैं सैलरी देना चाहता था, लेकिन बैंकों ने पैसा ब्लॉक कर दिया। इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड के तहत पहले बैंकों का हक है, फिर ऑपरेशन क्रेडिटर्स और आखिर में कर्मचारियों का। तो बैंक गलत नहीं थे। अगर माल्या सचमुच सैलरी देना चाहते थे तो कर्मचारियों के पर्सनल अकाउंट नंबर क्यों नहीं लिए? क्यों एस्क्रो अकाउंट खेल खेला? पॉडकास्ट में वो कहते हैं, मैंने कर्मचारियों के लिए सोचा। ठीक है, आपने सोचा, लेकिन स्कॉटलैंड में किला और दुबई में विला खरीदने का पैसा कहां से आया, जब आपका पैसा बैंकों ने ब्लॉक कर दिया? पासपोर्ट सस्पेंड होने से पहले माल्या ने कोई अपील नहीं की। पॉडकास्ट में वो कहते हैं, मुझे निष्पक्ष सुनवाई चाहिए, लेकिन क्या वो सचमुच भारत लौटना चाहते हैं या ये सिर्फ पीआर स्टंट है? बेंगलोर और लंदन में 22,280 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई। माल्या पर धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के केस चल रहे हैं। माल्या का दावा है कि मैंने 4,000 से 14,000 करोड़ तक के सेटलमेंट ऑफर दिए, लेकिन बैंकों ने ठुकरा दिया। लेकिन सेटलमेंट का मतलब दोनों पक्षों की सहमति होता है। बैंकों को ऑफर पसंद नहीं आया, इसमें गलत क्या है? 9,000 करोड़ के ऋण के लिए 4,000 और 7,000 करोड़ के ऑफर दिए जा रहे थे, जबकि माल्या के पास पूरे कर्ज का भुगतान करने के लिए संसाधन। 2020 में माल्या ने 14,000 करोड़ का भुगतान करने की पेशकश की, पर उस समय वह एक घोषित आर्थिक अपराधी थे। माल्या की लाइफ स्टाइल पर सवाल उठते हैं। पॉडकास्ट में वो कहते हैं, मीडिया मेरी लाइफ स्टाइल से जलता है, लेकिन 260 करोड़ की सैलरी न देना क्या जायज है मिस्टर माल्या? ललित मोदी ने पॉडकास्ट की तारीफ की। कई लोगों ने यह भी कहा कि विजय माल्या को हमदर्दी देने की जरूरत नहीं है। विजय माल्या जैसे लोगों का मामला जटिल है। एक तरफ बैंकों से भारी कर्ज लेकर भागने और कई लोगों की आजीविका को नुकसान पहुंचाने के गंभीर आरोप है, जो आर्थिक अपराध की श्रेणी में आते हैं। वहीं दूसरी तरफ ऐसे पॉडकास्ट में उनकी कहानी को एक तरफा और सहानुभूति जगाने वाले अंदाज में पेश करना गलत है। विजय माल्या, जो कभी व्यापार जगत के चमकते सितारे थे, अचानक से सामने आए और अपनी सफाई रखी। कितना सच कितना झूठ ये किसी को नहीं पता। अगर आप लोगों ने इसे बिना पूरी सच्चाई समझे सहानुभूति देना शुरू किया, तो फिर वही रास्ता नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, ललित मोदी और संजय भंडारी जैसे देश के बड़े आर्थिक अपराधियों के लिए भी खुल सकता है।
अब देखना ये होगा कि मीडिया और जनता की कलेक्टिव मेमोरी कितनी लंबी है, क्योंकि अगर जनता इनके पुराने कारनामे भूलकर सिर्फ उनके इंटरव्यू और कहानी सुनकर भावुक हो गई तो आने वाले दिनों में और भी भगौड़े इसी फार्मूले से सहानुभूति और इज्जत बटोरने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।